Hello students, welcome in Classic Economics in Punjabi. Students, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੈਨਲ ਤੇ ਨਵੇਂ ਹੋ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਟੌਪਿਕ ਇਸ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਜੋ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਹੈ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਆਫ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ, ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਕੰਮ। ਬੈਂਕਿੰਗ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੈ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਇਸ ਚੈਨਲ ਦੀ ਪਲੇਲਿਸਟ ਬੈਂਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਜੋ ਬੈਂਕਿੰਗ ਤੇ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। तो डिस्कस करते हैं फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਹੈ, ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਕਾਰਜ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। 6 ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ CBSE ਦੇ ਪੈਟਰਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਵੀ +2 ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਆਫ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ क्वेश्चन ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਹੈਡਿੰਗਸ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। 10 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਰਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਅੰਤ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਿਆ ਜੀ। ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਫਸਟ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ, ਜੋ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੰਮ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫਸਟ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਨੋਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ, ਇਸ਼ੂਇੰਗ ਆਫ ਨੋਟਸ। ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦਾ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨੋਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜੋ ਨੋਟ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ। ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਨੋਟ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਹੀ ਸਿਰਫ ਨੋਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੋਟ ਜੋ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਰਾਹੀਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਹ ਅਨਲਿਮਿਟਿਡ ਲੀਗਲ ਟੈਂਡਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਭਾਰਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਹੈ ਉਹ RBI ਹੈ, ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਨੋਟ ਹੈ ਉਹ RBI ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 1 ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੋਟ ਅਜਿਹਾ ਨੋਟ ਹੈ ਜੋ RBI ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। 1 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸਚਿਵ ਦੇ ਸਾਈਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਜੀਕੇ ਦਾ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 1 ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੋਟ ਕੌਣ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਵਿੱਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਆਨਸਰ ਦੇ ਦੇਣਾ ਤੁਸੀਂ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸ ਦੇ ਸਾਈਨ ਹੁੰਦੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਵਿੱਤੀ ਸਚਿਵ ਦੇ। ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੋਟ ਹੈ, 2 ਦਾ ਨੋਟ, 5 ਦਾ ਨੋਟ, 10 ਦਾ ਨੋਟ, 20 ਦਾ ਨੋਟ, 50 ਦਾ ਨੋਟ, 100 ਦਾ ਨੋਟ, 200 ਦਾ ਨੋਟ, 500 ਦਾ ਨੋਟ ਔਰ 2000 ਦਾ ਨੋਟ, ਇਹ ਸਾਰੇ RBI ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। तो फर्स्ट पॉइंट सारे स्टूडेंट्स को समझ आ गया हैगा, नोट जारी करना। तो सेंट्रल बैंक नू बैंक ऑफ इशू भी कहा जाता है। बैंक ऑफ इशू इनका मतलब नोट जारी करने वाला। तो यह है फर्स्ट पॉइंट स्टूडेंट्स, नोट जारी करना। सेकंड पॉइंट है सरकार दा बैंक। पंजाब बोर्ड के नवे सिलेबस के अकॉर्डिंग 3 पॉइंट्स पे मेन फोकस किया गया है, नोट जारी करना, सरकार दा बैंक और बैंकों दा बैंक। तो तुम इन तीनों पॉइंट्स को डिटेल च लिखोगे, बहुत अच्छे तरीके नाल समझोगे। पर आप डिस्कस करांगे 10 पॉइंट्स। तो सैकेंड पॉइंट आप लिया है सरकार दा बैंक, बैंकर टू द गवर्नमेंट। स्टूडेंट्स, केंद्रीय बैंक नू सरकार दा बैंक भी कहा जाता है। केंद्रीय बैंक नू सरकार दा बैंक भी कहा जाता है। केंद्रीय बैंक सरकार दे बैंक, सरकार दे एजेंट और सरकार दे सलाहकार दे रूप में काम करता है। केंद्रीय बैंक सरकार नू
ਆਰਥਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀ ਦੇ ਲਈ, ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਮੈਟਰ ਹੈ, ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਉਸ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਰੇਲਵੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਕੋਲ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ ਵੇਚਦੀ ਔਰ ਖਰੀਦਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀ ਜਾਂ ਵਿੱਤੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸੇਮ ਅਜਿਹਾ ਸੰਬੰਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਵਪਾਰਿਕ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬੈਂਕ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਵਿਆਜ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਉਧਾਰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬੈਂਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬੈਂਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਪੁਆਇੰਟ, तो ये सारी गल्लां जो मैं तुहानूं दस्सियां है, जो मैं बोलिया है, ये तुसी इस पॉइंट दी एलैबोरेशन च लिख दोगे। तुसी वीडियो नूं एंड तक देखिया करो। एक बारी देखोगे कोई कमी रह जाए तो वीडियो नूं दोबारा तो दूसरी बार देख लिया करो। गारंटी है जदों तुसी दो बार वीडियो नूं वेखोगे तुहानूं सारा लैक्चर टिप्स ते हो जाएगा। जदों तुसी मेरी कोई भी वीडियो वेखना शुरू करते हो कॉपी पेन नाल रखा करो। जो बोर्ड ते मैटर लिखा हुंदा है ये एग्जैक्ट मैटर है, ये मैं तुहाडे स्टूडेंट्स लई तुहाडे व्यूअर्स लई ही लिखदा। इसदा लिखण दा ये मतलब है कि तुसी जदों भी चाहो इस तो नोट्स बना सकते हो। देखो जदों तुसी इन्हां 10 हैडिंग्स नूं रट लिया तुहाडा अद्धा काम हो गया। केंद्रीय बैंक दे कम्मां दा वर्णन करो, 10 हैडिंग है, 10 दे 10 हैडिंग तुहानूं टिप्स ते हो जाणगे तुसी एंड तक वीडियो जदों देखोगे। जे तुसी पीछे रह जाते हो जदों लिख के देखते हो तो वीडियो नूं पॉज कर लिया करो। जदों पॉज करते हो वीडियो रुक जाती है, मैटर तुहानूं डिस्प्ले हो जाएगा। तीसरा काम की कर सकते हो, ਇਹਦਾ स्क्रीनशॉट ले सकते हो मैटर का। और जो भी मैं एलैबोरेशन देना वो बिल्कुल एग्जैक्ट होंदी है। तुसी मेरी उस वॉइस नूं सुन के लैक्चर नूं सुन के तुसी उन्हां दी एलैबोरेशन लिख सकते हो। मेरे नाल लर्न कर लिया करो। तो स्टूडेंट्स डिस्कस करते हैं तीसरा पॉइंट, बैंकां दा बैंक, बैंकां दा बैंकर। इस तो पहला केंद्रीय बैंक सरकार दा बैंक सी, हुण बैंकां दा बैंकर है। ये बड़ा ईजी पॉइंट है। जिन्हें भी कंट्री दे विच कॉमर्शियल बैंक होंदे हैं, व्यापारिक बैंक होंदे हैं, उन्हां सारा दा जो बैंक है वो है सेंट्रल बैंक। यानी कि सारे दे सारे व्यापारिक बैंक केंद्रीय बैंक दे हेठां काम करते हैं। केंद्रीय बैंक और व्यापारिक बैंकां दा सेम उस तरीके दा रिलेशन होंदा है जिवें व्यापारिक बैंकां दा आम लोकां नाल रिलेशन होंदा है। जेकर तुसीं व्यापारिक बैंकां दा आम लोकां नाल रिलेशन देखना होए तां मेरी एक वीडियो है व्यापारिक बैंकां दे मुख काम, मेन फंक्शनस ऑफ कॉमर्शियल बैंक। तुसीं ओहनूं जदों देखोगे तो उहदे विच एक्सेप्टिंग डिपोजिट, उत्थे मैं 5 तरह के खात्यां का जिक्र किया है। तुसीं उन्हां दी डिटेल पढ़ोगे तो सारी डिटेल समझ आ जाएगी कि किस तरह व्यापारिक बैंक लोकां दे नाल डील करते हैं। सिमिलर वे दे नाल सेंट्रल बैंक जिहड़ा है वो डील करता है व्यापारिक बैंकां दे नाल। व्यापारिक बैंकां दे जमावां नूं भी स्वीकार कर लैंदा है, उन्हां नूं लोड़ पैण ते उधार भी दे दिंदा है। तो व्यापारिक बैंक और केंद्रीय बैंक आपस विच एक दूसरे नाल पूरक हैं। व्यापारिक केंद्रीय बैंक जो मौद्रिक नीति अपनाता है उसनूं लागू करन दी जिम्मेवारी होंदी है व्यापारिक बैंकां दी। तो सारे व्यापारिक बैंकां दे खाते किंदे कोल होंदे हैं? केंद्रीय बैंक को। तो यह है पॉइंट स्टूडेंट्स। तो मैं तुहानूं पहला भी डिस्कस किया, हुण फिर कर रहा। आ तीने जिहड़े पॉइंट हैं, नोट जारी करना,
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬੈਂਕ ਔਰ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਬੈਂਕ। ਇਹ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰੋਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਰਵੇ ਨਾ। ਨੋਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬੈਂਕ ਔਰ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਬੈਂਕ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ 7 ਰਹਿ ਗਏ, ਉਹ ਐਕਸਟਰਾ 'ਚ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਖੋਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਲੈਂਥ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ 6 ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ 150 to 200 वर्ड से लिखना जरूरी है। तो तुसी मैक्सिमम हेडिंग लिखोगे, एलाबोरेशन टाइम के अकॉर्डिंग फिनिश करन दे विच जदों तुहानूं प्रॉब्लम आए तो उन्हें थोड़ा बहुत घटा सकते हो। चौथा पॉइंट है स्टूडेंट्स, बैंकां दा निरीक्षण, सुपरविजन ऑफ बैंक्स। केंद्रीय बैंक बैंकां दा निरीक्षण करता है। सारे दे सारे व्यापारिक बैंक केंद्रीय बैंक दे हेठां काम करते हैं। तो बैंकां दे निरीक्षण दे विच ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇਣਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਵੇਂ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ, ਨਵੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਨਵੀਂ ਸ਼ਾਖਾ ਕੋਈ ਬੈਂਕ ਖੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਇਰ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਤੋਂ। ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਕੋਈ ਬੈਂਕ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਆਪਸ 'ਚ ਮਰਜਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਵਿਲय ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜਕੱਲ ਹੁਣੇ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਮਰਜਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। SBI ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੈਂਕ ਸੀਗੇ 7, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਇੱਕ ਹੀ ਰੱਖਤਾ, ਮਰਜ ਕਰਤਾ ਆਪਸ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਤਾ SBI, ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ PNB ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਰੀਐਂਟਲ ਬੈਂਕ OBC ਨੂੰ ਮਰਜ ਕਰਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੈਂਕ ਹੋਰ ਮਰਜ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਯੂਨੀਅਨ ਬੈਂਕ, PNB ਔਰ OBC ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀ ਬਣਾਤਾ, ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਤਾ PNB। तो ये मर्ज ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ, ਇਹ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ, RBI ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਕਾਮਨਲੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਸੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਇੰਡੀਅਨ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਲਿਖੋਗੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ RBI ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰੋਗੇ। तो ये है स्टूडेंट्स चौथा पॉइंट, बैंकों का निरीक्षण। इस विच एक गल होर आप डिस्कस कर सकते हैं जो रह गई, वो है कोई बैंक जेकर केंद्रीय बैंक के आदेश अनुसार नहीं चलता, केंद्रीय बैंक ने जो नीति बनाई है मौद्रिक उसनूं लागू नहीं करता, तो उस दे लाइसेंस नूं रद्द किया जा सकता है। तो उसनूं किसी भी बैंक के लाइसेंस नूं रद्द करन दा जिहड़ा अधिकार है वो भी केंद्रीय बैंक का हुंदा है। इसे पॉइंट दे विच निरीक्षण च लिखोगे। पंजवां पॉइंट है स्टूडेंट्स, अंतम ऋणदाता, लैंडर ऑफ द लास्ट रिजोर्ट। व्यापारिक बैंकां नूं जे कितों भी लोन नहीं मिलता, कितों भी कर्जा नहीं मिलता, तो केंद्रीय बैंक उन्हां दे अंतिम ऋणदाता दे रूप च काम करता है। केंद्रीय बैंक जिहड़ा है लैंडर ऑफ द लास्ट रिजोर्ट हुंदा है। इस पॉइंट दे तो इन्ना ही लिखना है। छेवां पॉइंट है देश के विदेशी मुद्रा कोषां का संरक्षक। केंद्रीय बैंक को विदेशी मुद्रा का भंडार होता है। केंद्रीय बैंक को ही यह अधिकार है कि जो फॉरेन एक्सचेंज है उसनूं संभाल के रखे, अपने देश की जो करंसी है उस दे मूल्य दे स्थिरता बनाए रखे। इसलिए केंद्रीय बैंक नीति अपनाता है। तो केंद्रीय बैंक विदेशी मुद्रा के संरक्षक का काम करता है। कई बार केंद्रीय बैंक अपने निर्देश के अनुसार किसी व्यापारिक बैंक नूं भी ये अधिकार दे देता है कि वो भी विदेशी मुद्रा का संरक्षक बन सकता है। पर आप गल कर रहे केंद्रीय बैंक के कामां दी, तो केंद्रीय बैंक के कामां दा सब तो इंपोर्टेंट काम यह भी है देश के विदेशी मुद्रा कोषां का संरक्षक, कस्टोडियन ऑफ नेशंस रिजर्व्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। जिन्ने भी फॉरेन एक्सचेंज है, फॉरेन एक्सचेंज समझ रहे होंगे,
ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਜਿਵੇਂ ਡਾਲਰ, ਯੂਰੋ, ਪੌਂਡ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਟਾਕ ਆਰਬੀਆਈ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਟ੍ਰੇਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੇਮੈਂਟਸ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ। तो सारे दे कस्टडियन का काम करता है। तो देश के विदेशी मुद्रा कोषों का संरक्षक। 7वां पॉइंट है निपटारा करदा कार्य, क्लीयरिंग हाउस फंक्शन। जिवें कि आप पहला ही दस्सिया तुहानूं कि केंद्रीय बैंक कोल सारे व्यापारिक बैंकों के खाते होंगे, आपस से रूटीन से रोज एक बैंक का चैक दूसरे दे बैंक दे लिए आ जाता है, दूसरे का पहले दे लिए आ जाता है या तीसरे लिए आ जाता है। तो केंद्रीय बैंक की करता है, निपटारा करता कार्य करता है। मान लो कोई बैंक ए है, उसका एक चैक आया दूसरे बैंक के नाम से 10,000 का, बी बैंक दे, एक बैंक है बी उनके को ए दा आ गया 15,000 का। तो बैंक की करता है जेड़े भी बैंक के फालतू पैसे आए 5,000 रुपये उसके खाते च पा दिंदा है। इस तरह के कार्य को कहते हैं निपटारा करदा कार्य। 8वां पॉइंट है साख मुद्रा का नियंत्रण। ये अपना एक अलग तो क्वेश्चन भी बनूगा, एक वीडियो आप इस तो बनावांगे कि केंद्रीय बैंक किस तरह साख मुद्रा का नियंत्रण करता है, उस पर आप डिटेल देंगे। एक बार इत्थे तुसी सिर्फ इन्ना समझ लो कि देश विच मुद्रा की पूर्ति यानी कि सप्लाई ऑफ मनी, अवेलेबिलिटी ऑफ मनी, मुद्रा की उपलब्धता और मुद्रा की लागत, कॉस्ट ऑफ मनी, मुद्रा की पूर्ति नूं नियंत्रण करता है केंद्रीय बैंक। और इस लिए नीति अपनाता मौद्रिक नीति। मौद्रिक नीति के इंस्ट्रूमेंट्स होंगे, एक क्वालिटेटिव एक क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव दे जो आप डिस्कस करांगे बैंक रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन, CRR, SLR। क्वालिटेटिव विच मार्जिनल रिक्वायरमेंट ऑफ लोन्स, राशनिंग ऑफ क्रेडिट, डायरेक्ट एक्शन, मोरल परसुएशन। ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू केंद्रीय बैंक देश विच साख मुद्रा ते नियंत्रण करता है। इत्थे तुसीं इन्ना ही लिख दोगे। नैक्सट वीडियो जो तुहानूं मैं डिलीवर करूँगा उदों तुसीं इस दी होर डिटेल जानोगे तो इस पॉइंट नूं होर वधिया तरीके नाल लिख पाओगे। 9th पॉइंट है स्टूडेंट्स आंकड़े इकट्ठे करना। केंद्रीय बैंक आंकड़े इकट्ठे करता है देश की आर्थिक स्थिति बारे, आयात बारे, निर्यात बारे आंकड़े इकट्ठे करके टाइम टू टाइम पब्लिश करता रहता है। इस दे नाल भी लोगों की नॉलेज विच वाधा होता है, इनहांस इंटलैक्चुअल लैवल ऑफ द पीपल। और आंकड़े जो इकट्ठे करके देता है तो सरकार भी उस दे आधार पर पॉलिसी और नीति अपनाती है। तो यह आंकड़े इकट्ठे करना। 10वां जिहड़ा है अदर फंक्शंस, होर कार्य। बैंक इन्हां 9 कार्यों के अलावा कुछ दूसरे कार्य भी करता है। इन्हां नूं ज़्यादा डिटेल देने की लोड़ नहीं है, तुसीं इन्हां दे सिर्फ हैडिंग्स लिख के छड़ दिओ। एग्रीकल्चरल क्रेडिट, खेती वित्त, खेती के विकास लई उधार दिंदा है। कौमांतरी मुद्रा सम्मेलन, इंटरनेशनल मॉनेटरी कॉन्फ्रेंसिस। आरबीआई जिन्नी भी अपने कंट्री दे प्रतिनिधित्व लई जिन्नी भी इंटरनेशनल मॉनेटरी कॉन्फ्रेंस होंदी है, जिमें IMF दी है, वर्ल्ड बैंक दी है, G20 दी है, उन्हां च भाग लैंदा है। तो IMF या वर्ल्ड बैंक या कुछ होर इंटरनेशनल मॉनेटरी कॉन्फ्रेंस होंदी है, उन्हां दे विच देश का रिप्रेजेंटेटिव RBI दा गवर्नर ही करता है। मुद्रा ते बिल बाजार ते नियंत्रण रखता है। और लास्ट काम है फटे पुराने नोट वापस लेंदा है। जिन्ने भी लोन नोट जेड़े हैं प्रचलन च हैं, ट्रेंड च हैं, जेकर फट जाते हैं तो RBI की करता है या सेंट्रल बैंक की करता है तो फटे नोट वापस ले लेंदा है और उन्होंने बराबर दी उन्नी ही करेंसी होर जारी कर देता है। तो फटे पुराने नोट वापस लेना, रिटर्न ऑफ टॉर्न नोट्स। तो ये है स्टूडेंट्स सेंट्रल बैंक के मुख्य काम। तो सेंट्रल बैंक के जोड़े मुख्य काम है उनके 10 हैडिंग आप डिस्कस किए हैं। लास्ट विच मैं सारे हैडिंग एक बार पढ़ देना। फर्स्ट, नोट जारी करना। समझ आ गया, जो समझ नहीं आया तो वीडियो नू बैक करके पीछे वेखो, तुहानूं उत्थे समझ आ जाएगा। दूसरा है सरकार दा बैंक। तीसरा है बैंकां दा बैंक। चौथा है बैंकां दा निरीक्षण। पंजवां है अंतिम ऋणदाता। 6वां है देश के विदेशी मुद्रा कोषों का संरक्षक। 7वां है निपटारा करदा कार्य।
8वां है साख मुद्रा का नियंत्रण, 9वां पॉइंट है आंकड़े इकट्ठे करना और 10वां पॉइंट है होर कार्ज। ये 4 पॉइंट अपने खेती वित्त, कौमांतरी मुद्रा सम्मेलन, मुद्रा ते बिल बाजार, फटे पुराने नोटा नू वापस लेना। इंग्लिश से जेकर आप पढ़िए तो इशूइंग ऑफ नोट्स, बैंकर ऑफ द गवर्नमेंट, बैंकर ऑफ बैंक्स, सुपरविजन ऑफ बैंक्स, लैंडर ऑफ लास्ट रियोर्ट, कस्टोडियन ऑफ नेशनल रिजर्व्स, क्लियरिंग हाउस फंक्शन, कंट्रोल ऑफ क्रेडिट, कलेक्शन ऑफ डाटा, अदर फंक्शंस, एग्रीकल्चरल क्रेडिट, इंटरनेशनल मॉनेटरी कॉन्फ्रेंस, मनी एंड बिल मार्केट और रिटर्न ऑफ टर्न नोट्स। तो स्टूडेंट्स ये सी अपना लेक्चर। चैनल नू सबसक्राइब करो, बैल आइकन प्रेस करो ताकि जदों भी मेरी वीडियो आती है सब तो पहला वीडियो तुहानू मिले। वीडियो नू लाइक जरूर करो, वीडियो नू शेयर जरूर करो अपने साथियों दे विच, अपने स्टूडेंट्स दे विच, अपने वैल विशर दे विच, सब दा फायदा होना चाहिए है। तो यह स्टूडेंट्स ये लैक्चर नैक्सट वीडियो आप लैके आवांगे इसे ते ही, उहदे विच होऊगा डिफरेंस बिटवीन कॉमर्शियल बैंक एंड सेंट्रल बैंक, व्यापारिक बैंक अते केंद्रीय बैंक विच अंतर। मैं चाहना कि कोई मैटर रवे ना, तो एक प्लेलिस्ट बन जाएगी, सारा मैटर तुसी इत्थों ही पढ़ सकते हो विदाउट एनी बुक। तुसी मेरी प्लेलिस्ट से जाओगे, बैंकिंग खोलोगे, बैंकिंग दे विच सीक्वेंस वाइज सिलेबस के अकॉर्डिंग तुहानू सारी दी सारी वीडियोज मिल जाएंगे। फिर भी कोई कमी रहूगी तो एक होर वीडियो बना दी जाऊगी। बाकी जदों आप अगे मूव करांगे होर बहुत सारा मैटर जो आइडियाज दिमाग च आएंगे, क्वेश्चन आंसर, शॉर्ट नोट्स, वो भी मैं तुहाडे लई प्रिपेयर करूँगा तो कोशिश करांगे बेस्ट तो बेस्ट वर्क देने दी। स्टूडेंट्स वध तो वध सबसक्राइब करो चैनल नू, वध तो वध लाइक करो और शेयर करो। थैंक्स स्टूडेंट्स, थैंक्स अ लॉट।